All right, guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. And yes, we are back. We are back. And I know that a lot of you have been questioning our consistency over the past few weeks because we haven't been, of course, consistent enough on our platforms with the videos and with the insights that we've been bringing you throughout the IPL and throughout the World Cup. But we were planning for quite some time as to what to do in the future. So what we've decided is that, thrice every week, that is on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays, we are going to bring out this podcast to you guys so that we have also enough and adequate time to research and, of course, bring you great insights and great stories from the world of cricket. Today is the first episode that we are bringing you, that we are going to talk about everything cricket. And of course, there are quite a lot of topics that we are going to discuss. We have England versus West Indies. We have the Australian tour to Scotland and England. And of course, we had the New Zealand central contracts that were also brought about in the previous week. So we are going to discuss that one by one. And of course, this gives us great pleasure to also announce that we are also going to be from today onwards on Spotify and podcasts. So that's where we've planned to expand ourselves and extend based on the feedback that was given to us. But starting, of course, with Dwanil, what's happening, man? I mean, what's happening with England? What's happening with West Indies? I mean, the first match, of course, we discussed in the last podcast as well. Not a great spectacle for, or not a great advertisement for uh, टेस्ट मैचेस, जबकि टेस्ट मैच का भी इतना सब कुछ वो चल रहा है. वी सीइंग दैट टेस्ट मैचेस अभी ऑलरेडी एक ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं. पर ऐसे में अगर 2.5 दिन का या 2 दिन का अगर टेस्ट मैच होता है विच इज इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, तो क्या एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट है? इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज ना बहुत टाइम पहले 1970s नहीं 1970s में हुआ था ये. तो 5-0 हराया था वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को उनके ही घर में और उसको ब्लैक वॉश बुलाया था, व्हाइट वॉश नहीं, ब्लैक वॉश. तो 80s एंड 90s में इतनी खतरनाक टीम अचानक से कैसे ड्विंडल कर गई, इसके लिए ना लोग अभी बोलते हैं यार ये आईपीएल आ गया, ये हो गया, वो हो गया. बट ये ना 2000 से ही शुरू हो गया. ठीक है, 1990 से 2000 तक 81 मैचेस खेले वेस्ट इंडीज ने, जिसमें 37% मैचेस वो जीत गए. ठीक है, 2000 से 2010 के बीच में 108 मैच खेले, सिर्फ 18 विन्स ही हैं उनकी, एंड 16.6% मैचेस जीते हैं. ठीक है, 2010 to 2020 they fall to only playing 88 matches. Okay, out of which they win only 23, which is at 26%, which is 10% higher than 2000 to 2010. Now these are the years 2000 to 2010 के बीच में वेस्ट इंडीज के साथ जो हुआ है वो बहुत रिमार्केबल चीजें हुई. ठीक है, they were slowly losing out players. They were waiting for the next Malcolm Marshall. They were waiting for the next Brian Lara still holding, but none of them ever came to the West Indies fold. ठीक है, the problem what that happened is in a series against India, ब्रायन लारा ने बोला कि मुझे ना मैच हारने के बाद पोस्ट कॉन्फ्रेंस में बोल दिया सबके सामने कि मुझे ना एक और पेस बॉलर चाहिए था, मेरी सिलेक्शन टीम ने मुझे दिया ही नहीं. That is the first instance when someone from the West Indies spoke against the board very openly in public. ठीक है, टीनो बेस्ट को सब बोलते थे यार आप नेक्स्ट माल्कम मार्शल हो. टीनो बेस्ट ने अपनी बायोग्राफी में ये लिखा है कि जब मैं अपना डेब्यू कर रहा था, ठीक है, मेरे को रिकी पॉन्टिंग का विकेट मिलने वाला था, लेकिन चंद्रपॉल ने कैच छोड़ दिया गली में, और कोई मुझे वेल बोल भी नहीं बोल रहा है पूरी टीम में से. नो वन इज बैकिंग, नो वन इज क्लैपिंग. मेरे साथ मर्व डिलन था, पता है, जिसने अनिल कुंबले का जॉ तोड़ दिया था. वो मेरा सीनियर क्रिकेटर था, सीनियर बॉलर था. उसकी जगह पे मैं आया था, लेकिन उसने मुझे एक पानी का ग्लास तक नहीं पूछा. मुझे अगर मैं बारबाडोस में अगर खेलता ना, तो सब लोग एक दूसरे का बहुत ज्यादा साथ देते हैं. when especially if he's playing from Barbados, तो इसने बोला कि हम वेस्ट इंडीज एज क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हम बहुत अलग अलग आइलैंड से आते हैं और इनका कल्चरली बहुत डिफरेंट होता है, इनका क्रिकेट खेलने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है. सो एवरीवन इज नॉट जेलिंग टुगेदर एज अ टीम. Before this, what happened was West Indies had the chance of beating and showing people that you know what they are. They came together with patriotism. Now that thing is slowly fading away because people have started realizing that the way the West Indies board is treating players is not fair. I give you an example of Lara. Chandrapal had to retire in 2016. In fact, he was forced to retire. And he said कि मैं 21 साल आपके लिए खेला, आपने मुझे एक मैच नहीं दिया कि मैं जाके परफॉर्म करूं.
At an average, see, you might blame the IPL and T20 culture for it because टेस्ट क्रिकेट उनका धीरे धीरे खराब हो रहा था एंड 2008 में आईपीएल आ गया एंड 5 साल में सीपीएल आ गया एंड a lot of these young cricketers first used to watch कि यार Brian Lara is my hero or Ian Bishop is my hero or anyone else is my hero. Now they don't have anyone to look up to. Now they watch who? Andre Russell, Aaron Pollard, Nicholas Pooran, all of them only play T20 cricket. Okay. At an average, a West Indies player gets paid $5,000 for a test match. Okay. Australians get paid $12,500 per test match. This is above their central contract. और शेहॉप ने बोला कि यार मैं $5,000 में एक टेस्ट मैच, $5,000 में एक टेस्ट मैच मिल रहा है, मैं ऐसे T20 में थोड़े मैच खेल के 2 लाख लाइक $2,500 तो ऐसे ही मिल जाते हैं मुझे, मैं क्यों जाके खेलूं, especially when the West Indies board is treating it like this. So a lot of people say is that West Indies cricket is now going bad. 2000 से ही शुरू हो गया था. People started losing faith. The board did not give proper salaries to them. In fact, they admitted that before COVID in 2019, they were not able to play their players. They did not pay salaries. Okay. So, okay, I'll make you understand this. Okay. This is only I'm talking about red ball cricket. वेस्ट इंडीज में ना वेस्ट इंडीज चैंपियनशिप होता है, जैसे अपने यहाँ रणजी ट्रॉफी होता है ना, उनका वेस्ट इंडीज चैंपियनशिप होता है. वो 4 डे कप होता है, वो 5 डे भी नहीं होता है बिकॉज ऑफ आई थिंक फाइनेंशियल इश्यूज. पहले से 4 डे है. उसमें टीम्स पार्टिसिपेट करती है बारबाडोस, जमैका, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, विंडवर्ड आइलैंड्स, लीवरड आइलैंड्स. ये 5-6 टीम ही है जो खेलती है. ठीक है. अपना रणजी ट्रॉफी जैसा बड़ा पूल है नहीं उनके पास, तो ये इतने ही लोग खेलते हैं उसमें. ठीक है. तो बारबाडोस स्टार्टेड विद प्लेयर्स लाइक क्लाइड वॉलकॉट, फ्रैंक वॉरेल, एवर्टन वीक्स. उन्होंने मैटिंग विकेट से ग्रास विकेट्स पे आया. फिर गैरी सोबर्स आया. गैरी सोबर्स गिव हैंडओवर्स टू पीपल लाइक मैल्कम मार्शल, जोएल गार्डनर. उसके बाद देन मैल्कम मार्शल रिटायर्ड इन 1992. आफ्टर दैट, okay, they only had Sherwin Campbell who played 52 tests, Fiddle Edwards who played 55 tests in 18 years. Imar Rauch played only 73 tests. After that, they have no one. Then straight you go to 2011 where Craig Brathwaite played. वो खेल ही रहा है अभी तक 77 टेस्ट. उसके बाद बीच में होल्डर, जेसन होल्डर आया, उसके भी 56 टेस्ट है. Shea Hope not playing anymore. Roston Chase in this thing. Okay. So Barbados from 2000 to 2010 उनकी जो चैंपियनशिप थी वो 10 में से 5 बार जीत गई. 2010 से 2020 में वो सिर्फ 3 बार जीती. ठीक है. सिमिलरली जमैका यूज्ड टू बी दिस अमेजिंग क्रिकेट प्रोड्यूसिंग नेशन. वो 6 बार जीत गई थी 2000 से 2010 के बीच में. 2010 से 2020 के बीच में सिर्फ 2 बार जीती हो. And the only cricketer they have who they can look up to is Chris Gayle, because the Jamaican government cannot, their economy is so bad right now that basics का इतना problem है कि वो लोग क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकते. एंड स्पेशली आफ्टर उसेन बोल्ट और वो सब जीत गए, सब ट्रैक एंड फील्ड खेलने लगे या बास्केटबॉल खेलने लगे, बिकॉज नो वन इज इंटरेस्टेड इन कमिंग एंड वाचिंग वेस्ट इंडीज प्ले, क्योंकि आप जीत ही नहीं रहे ना यार. अब इतने टाइम से जीत ही नहीं रहे, मैं क्यों आके देखूंगा. However, Guyana from 2000 to 2010 वो एक भी बार नहीं जीता, और 2010 से 2020 के बीच वो 5 बार लगातार जीत गया. The reason why Guyana did well is because गुयाना क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया कि जब वो सीपीएल खेलते हैं तो जो नॉर्थ अमेरिका में जो गयनीज रहते हैं ना, उनको भी बुलाते हैं खेलने देखने के लिए मैचेस. So a lot of people from there come and start playing it, which in turn gives the Guyana government a lot of economy, flights, local bus transports, foods, restaurants, etc. And they follow it with a lot of passion. Hence, they started investing in Guyana under 15, Guyana under 12, academies, sending them out abroad. This is where Guyana showed the way for West Indies. The last problem that West Indies has is their brain drain. अब जोफ्रा आर्चर को भी रिटेन कर सकते हो, बारबाडोस से था. अब क्रिस जॉर्डन को भी खिला सकते थे, वो भी चला गया because they got better contracts there. So as Brian Lara said, it's not about the money. It is, you can pump in hundreds and 200 millions of dollars, but it's about the culture that we have lost. The ability of the West Indies team to come together as a group. In fact, they also said कि काम करो ना, अलग अलग करो. Barbados versus Australia, Guyana versus New Zealand, ऐसा. West Indies एक नहीं खेलेगा. They obviously rejected the idea now. So a lot of people are saying revenue share model नहीं है वेस्ट इंडीज के पास, पैसे नहीं है. बोलता पैसे तो जिम्बाब्वे के पास और अफगानिस्तान के पास भी नहीं थे, फिर भी आप प्लेयर्स कहाँ लेके जा रहे हो.
And you could see that during England versus this thing. वो बेचारे सब मिला के भी उनके 100 टेस्ट नहीं हुए थे यार. एंड इंग्लैंड इंग्लैंड जैसी रूथलेस साइड के सामने खेलना, जहाँ पे बेन स्टोक्स और जेम्स एंडरसन पूरी स्क्वाड है, you can't expect these boys to win. So it's I think West Indies has completely lost the plot, and they're going to take a lot of time to come back because they should have started much earlier. वैसे जो तूने बात करी विथ विथ वेस्ट इंडीज क्रिकेट, सो बेसिकली वेस्ट इंडीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 कंट्रीज इन टोटल, ठीक है, Yeah. और उनका पॉपुलेशन समवेयर अराउंड 5 to 6 मिलियन. एंड इफ यू एक्चुअली कंपेयर इट विथ न्यूजीलैंड, ठीक है, जिनका अगेन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, एक छोटा सा आइलैंड होने के बावजूद, ठीक है, इनका जो कॉन्ट्रास्ट रहा है इन द क्रिकेटिंग हिस्ट्री, बोथ ऑफ देम, ठीक है, टुगेदर स्टार्टेड एट द सेम टाइम, ठीक है, दोनों कॉलोनीज थी इंग्लैंड की. West Indies started somewhere around 1928, if I'm not wrong, and 26. 1930s में इनका न्यूजीलैंड का क्रिकेट शुरू हुआ था, ठीक है. सिंस दैट टाइम जितना भी हुआ है वो पूरा का पूरा रिवर्सल हुआ है, अगर आप न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज क्रिकेट को देखो, ठीक है. सो अभी लास्ट वीक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है न्यूजीलैंड के बाहर आए थे, एंड काफी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड को ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वाली प्रॉब्लम ना बहुत जल्दी सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत छोटा सा पूल है न्यूजीलैंड के पास. पर न्यूजीलैंड ना हमेशा बहुत स्मार्ट रहा है विद देयर पॉलिसीज, और इसका एक खतरनाक एग्जांपल देता हूँ. टिल द ईयर 2000 न्यूजीलैंड क्रिकेट का टेस्ट में विन लॉस रेशियो था 0.39 एंड ओडीआईज में था 0.76. न्यूजीलैंड की जो रैंकिंग थी वो 8th थी इन बिफोर द स्टार्ट ऑफ 1999, एंड ऑफ कोर्स दे मेड इट टू अ फ्यू वर्ल्ड कप फाइनल सेमीफाइनल्स आल्सो. इनफैक्ट 1995 में साउथ अफ्रीका के एक टूर पे स्टीफन फ्लेमिंग, डियोन नैश और मैथ्यू हार्ट, ये लोग पकड़े गए थे मैरिजुआना स्मोक करते हुए. एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट न्यूजीलैंड क्रिकेट में एक प्रोफेशनलिज्म लाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी. तो इन लोगों ने ना एक बहुत अजीब डिसीजन लिया. पूरे बोर्ड ने अपने आप को वोट आउट कर दिया और ये लेके आए क्रिस्टोफर डोइक को, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव बना, एंड ही वाज अ प्रोफेशनल ओपेरा सिंगर, ठीक है. क्रिस्टोफर डोइक ने क्या किया कि उनका जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर था बाय द नेम ऑफ रॉजर डगलस, ठीक है, उसकी कई सारी पॉलिसीज को न्यूजीलैंड क्रिकेट में डाली. एंड न्यूजीलैंड एज अ कंट्री ना उस टाइम पे एक इकोनॉमिक रिफॉर्म से गुजर रहा था, क्योंकि उस एरा को इनफैक्ट ये लोग बोलते हैं रॉजर नॉमिक्स, क्योंकि डगलस की कई सारी पॉलिसीज को ना मतलब उस टाइम से न्यूजीलैंड क्रिकेट न्यूजीलैंड इनफैक्ट एज अ कंट्री आगे बढ़ रही थी. सो क्रिस्टोफर डॉयग ने क्या किया, सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी खत्म करी, ठीक है, और उसके बाद उसने न्यूजीलैंड की जो टीवी राइट्स की जो रेवेन्यू था उसको ट्रिपल किया, और उसके बाद रग्बी जैसा एक सिस्टम बनाया जहां पे डोमेस्टिक सर्किट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे वो अब नेशन फर्स्ट के अप्रोच से काम कर रहे थे, और कोई सिलेक्शन कमिटी नहीं थी, और कोच को एक फ्री हैंड दिया कि आप जाओ और सिलेक्ट करो. एंड न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ना एक बहुत ज्यादा प्रूडेंट डिसीजन लिया. बाकी कंट्रीज की तरह उन्होंने एक कोई भी T20 फ्रेंचाइज टूर्नामेंट नहीं ऑर्गेनाइज कराया अपार्ट फ्रॉम देयर डोमेस्टिक टूर्नामेंट विच इज सुपर स्मैश. अब आप इंग्लैंड का देख लो. इंग्लैंड से फॉर एग्जांपल, इंग्लैंड में कहीं सारे आपके पास वर्सेसशायर, ससेक्स, सारे कहीं सारे ऐसे मतलब आपके पास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि वो लोग ईसीबी के साथ, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके एक नेशन फर्स्ट जिसे कह सकते हैं कि हाँ हम इंग्लिश टीम का सोच रहे हैं, इंग्लिश क्रिकेट टीम का सोच रहे हैं, वो हमारी ज्यादा क्या कहते हैं एक एक इम्पोर्टेंट जिसे कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट अप्रोच होना चाहिए या फिर एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वैसा नहीं करते. दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट बॉडीज, एंड एट टाइम्स वो लोग इंग्लैंड क्रिकेट का मतलब जरूरी नहीं है कि वो लोग बात माने, पर न्यूजीलैंड क्रिकेट में और न्यूजीलैंड रग्बी सिस्टम में दोनों में ऐसा है कि मतलब डोमेस्टिक टीम्स अगर न्यूजीलैंड क्रिकेट कुछ डिसीजन लेती है ना, सो डोमेस्टिक टीम्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आर ऑल ऑलवेज इन लाइन. उनके पास 6 डोमेस्टिक टीम्स है, उनके पास टोटल ही 6 डोमेस्टिक टीम्स हैं, और वो सारी की सारी इन लाइन जाती है कि भाई हमें ये प्लेयर इस टाइम पे ऐसा चाहिए. और जैसे एनसीए हमारा फंक्शन करता है, वैसी उनकी डोमेस्टिक सिस्टम्स फंक्शन करती हैं कि हाँ हमारा आपने क्या कहते हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड एक अगर एक पर्टिकुलर लेट्स से फॉर एग्जांपल इट्स लाइक अ ट्री, राइट. एंड न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अगर कोई अनाउंस कर दिया कि हमें ये प्लेयर इस टाइम पे इस कंडीशन में चाहिए, तो डोमेस्टिक सिस्टम जरूरी नहीं है कि उनको सारे मैचेस खिलाएं. डोमेस्टिक सिस्टम ये करता है कि हाँ चलो ठीक है, इस टाइम पे न्यूजीलैंड क्रिकेट को जरूरत होगी, इसीलिए मैं इसको जो है जाने दूंगा, या फिर इसको अगर ये अवेलेबल भी है तो भी मैं रेस्ट कराऊंगा क्योंकि इसके न्यूजीलैंड के लिए मैचेस हैं बाद में. सो दैट्स द काइंड ऑफ सिस्टम, दैट्स द काइंड ऑफ कल्चर दैट न्यूजीलैंड हैज, ठीक है. एंड विद अ स्मॉल पूल ऑफ प्लेयर्स इट कंप्लीटली मेक्स सेंस, ठीक है. द अदर थिंग
इनफैक्ट मैं अब क्या कहते हैं, एक बात बताऊं कि क्रिस्टोफर डॉयक ने ये भी किया कि ही स्टार्टेड रेजिंग मनी, ठीक है। एंड उसने ना ट्रिपलिंग करी रेवेन्यू की। बिफोर डॉयक ज्वाइंड इन 1995, द रेवेन्यू वाज समवेयर अराउंड 7 मिलियन डॉलर्स, 7 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स। बट व्हेन ही लेफ्ट, इट वाज अराउंड 22 मिलियन डॉलर्स। सो इट्स अ ह्यूज जंप। पर यही चीज अगर आप क्या कहते हैं वेस्ट इंडीज में देखो, तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है। क्योंकि वेस्ट इंडीज में आप जीतना कम कर देते हो, धीरे धीरे क्या कहते हैं इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो लोग भी अब आपको क्यों आके देखें, देयर वाज दिस टाइम जब तूने कहा कि मतलब मैल्कम मार्शल चाहिए इनको, जो है गैरी सर गारफील्ड सोबर्स इनफैक्ट, ठीक है, उस उनको भी उस टाइम से ही, ठीक है, ही हैड टू बी इनफैक्ट टोल्ड कि आप लैंकाशायर के लिए मत खेलो, आप जो है क्या कहते हैं आगे इनके लिए खेलो, क्योंकि लैंकाशायर में उनको पेमेंट ज्यादा मिल रही थी। तो उस हम्म, टाइम से ही इनफैक्ट सर, और मैं सर गारफील्ड सोबर्स की बात कर रहा हूँ भाई, बहुत बड़ा आदमी है वो, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स एवर टू हैव प्लेड द गेम। सो उस टाइम से ही मतलब क्या कहते हैं, जैसे कह सकते हैं कि एक एक सिस्टम था जहाँ पे ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड वर एट द मर्सी ऑफ ऑल दीज काउंटीज, क्योंकि काउंटीज अच्छा पे कर रही थी और काउंटी क्रिकेट देखने भी आते हैं। आज की डेट तक लोग काउंटी क्रिकेट yeah. देखने आते हैं यार अच्छे से। सो ऑल दीज थिंग्स इनफैक्ट, मनी इनफैक्ट इज अ मेजर सोर्स, मतलब यार आप बिना पैसे के तो नहीं चल सकते। और ये क्या कहते हैं न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छे से समझा। एंड इनफैक्ट इसीलिए दे लेट गो ऑफ प्लेयर्स कि आप ठीक है जाओ। और इनका एक बहुत अच्छा बैलेंस था न्यूजीलैंड का हमेशा से, कि आप जाओ खेलो फिर वापस आओ, करो अच्छे से कंट्री के लिए, कोई चक्कर नहीं है। ट्रेंट बोल्ट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स, ठीक है। टिम हम्म, साउदी आज है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, लॉकी फर्गसन चला गया, और केन विलियमसन इज नाउ इन अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यूजीलैंड, मतलब कैजुअल प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यूजीलैंड, ठीक है। मतलब दीज थिंग्स गो, मतलब इट जस्ट शोज कि मतलब सम अ ग्रेट लाइक केन विलियमसन आल्सो नीड्स मनी मैन टू सस्टेन, एंड ऑब्वियसली उसका करियर अभी खत्म होने वाला है, ठीक है, धीरे धीरे। ही इज ऑल्सो रीचिंग दैट रिटायरमेंट फेज। कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया, बट वी सॉ हिम ऑल्सो प्लेइंग, आई थिंक ही ऑल्सो प्लेड द सेम अंडर 19 एज same. Steve Smith, सो yeah. सो Steve Smith, समवेयर Kane डाउन द Williamson. लाइन इनके भी दिमाग में चल रहा है भाई कि मतलब व्हाट पोस्ट रिटायरमेंट। सो प्रोबेबली हाँ, हर कोई माइक नहीं पकड़ सकता ना यार, इयन स्मिथ या फिर साइमन डू, बिकॉज दैट ऑल्सो रिक्वायर्स अ स्पेशल स्किल। बट यस, आई मीन ऑफ कोर्स, जैसे रवि शास्त्री ने कहा था कि प्रोबेबली 6 नेशंस खेल सकते हैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट, या फिर 6 नेशंस का बना दो, बाकी सबको जो है बाकी सारे फॉर्मेट्स खिलाओ। So maybe that is the future, who knows? But England seems to be doing pretty well with Test cricket. New Zealand, of course, will have to struggle a bit if थोड़े time में हो सकता है कि मतलब future doesn't look that bright. But of course, for India, Australia, and England, everything seems to be okay. मैं कुछ मसाला देता हूँ। पता है अभी बहुत सारा ज्ञान हो गया है। पता है लोग बोर हो जाएंगे यार, क्या बोल रहे हैं ये लोग। कभी कोई वेस्ट इंडीज पकड़ ले रहा है, कभी कोई यू नो न्यूजीलैंड पकड़ ले रहा है। इतना नहीं चाहिए, मैं मसाला देता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है पता है, 19 जुलाई से 22 जुलाई को आईसीसी का कॉन्फ्रेंस होने वाला है श्रीलंका में। और दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग अ कॉन्फ्रेंस इन एशिया रीजन। इससे पहले नहीं हुआ है। इसमें 220 डेलीगेट्स आएंगे ऑफ 108 आईसीसी मेंबर्स रहेंगे उसमें। Hmm. कंट्रीज इसमें कन्वर्ज होंगी, श्रीलंका में सच एज अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ईस्ट एशिया पैसिफिक एंड यूरोप। एंड द थीम फॉर दिस कॉन्फ्रेंस इज कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी। पैसा कहां से आएगा? पैसा यहां से आएगा। टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड द स्पोर्ट। ये टॉपिक रहेगा इनका डिस्कस करने का कि भाई आगे का रोड मैप क्या है। ठीक है, अभी हम ओलंपिक में हमको हमारा आ गया है, ठीक है, वेल एंड गुड। हमको अभी वर्ल्ड मैप में छाना है क्रिकेट को, सेम लाइक अ फुटबॉल। इस सब चीज में सोर्स से ये पता चला है कि पाकिस्तान ने ये बोल दिया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होके रहेगा, क्योंकि हम अपना तीनों स्टेडियम रिवैम्प कर रहे हैं। ठीक है, और आईसीसी को पुश, डेफिनेटली दे विल पुश आईसीसी कि भाई आप ये वर्ल्ड कप होस्ट कराए हो, आप बीसीसीआई से मेरे को कंफर्मेशन दे दो 5 6 महीने पहले कि आप वापस आप लोग पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हो कि नहीं। Hmm. अभी वो बीसीसीआई और गवर्नमेंट के ऊपर है कि टीम इंडिया जाती है कि नहीं। नहीं तो फिर वो हाइब्रिड होगा। अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा, बहुत सिंपल सी बात है। कौन स्पॉन्सर करेगा बता?
विच कोई पैसा स्पॉन्सर नहीं करेगा आईसीसी के टूर्नामेंट के लिए अगर इंडिया नहीं खेला तो। बट अगर रूल के हिसाब से देखा जाए ना, आईसीसी के रूल से देखा जाए, अगर कोई टीम ऑप्ट आउट करती है तो नीचे वाली टीम ऊपर आ जाएगी, वो है श्रीलंका। बट मेरा ये क्वेश्चन है अपने व्यूअर से कि अगर आईसीसी का स्टैंड इसमें क्या होगा। अब अपने को ये देखना है इसमें आईसीसी का स्टैंड क्या होगा। अगर इंडिया ने मना कर दिया, चलो इंडिया ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं आएंगे, व्हाट विल बी द स्टैंड फॉर आईसीसी। डेथ स्टैंड पाकिस्तान ऑफ को ऑफ मना नहीं जेंटलमैन कर पार्ट आईसीसी टू, इज कि भाई बीसीसीआई के जो बोल रही है उसको मान लो, खत्म करो। डेथ बहुत ऑफ अ सिंपल सी बात है जेंटलमैन ना पार्ट टू। यार। बहुत अच्छा सिंपल तो बात है। अगर यार इंडिया एक फाइनल में सिंपल सी पहुंच गया, बात कोई बड़ी बात नहीं, वानखेड़े में करा दें ये लोग। नहीं नहीं नहीं, हाँ, एक सिंपल सी बात वो तो करते हो हैं, एक जाएगा सिंपल सी यार, बात उसमें करते क्या हैं। है। भाई सुनना, नेशन ठीक है, नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल्सो लव आवर नेशन, वी विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान, बट व्हाट इज द एज अ स्पोर्ट्स, एज अ आईसीसी, एक अलग पिक्चर से देख क्या होना चाहिए। तेरे को क्या लगता है? नहीं होगा अगर इंडिया नहीं खेलेगी तो नहीं होगा मैच, आईसीसी भाई अगर चैंपियंस इंडिया ट्रॉफी नहीं नहीं खेलेगी होगा। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से चल आएगा? छोड़ ना, पैसा छोड़, चलो पैसा, मैं ऐसा पैसा क्यों हाइपोथेटिकल छोड़ क्वेश्चन दो पूछता यार? हूँ। पैसा ही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। रूल इंपॉर्टेंट नहीं है आईसीसी का रूल सारे तोड़ जाते हैं, सारे तोड़े यार जाते हैं। सही है, जब पता जब है, जब मैं बताता हूँ। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, इज मनी, एंड आई टेल यू व्हाई। ठीक है, जब आपका अगर अगर मान लो कि इंडिया नहीं खेल रही, इफ इंडिया ऑप्ट आउट, ठीक है, हम्म बीसीसीआई फर्स्ट ऑफ ऑल हैज अ लॉट ऑफ से इन स्पॉन्सरशिप्स, ठीक है, स्पॉन्सरशिप मनी। और जितना भी फ्लो इन होगा वो तभी होगा जब इंडिया की ऑडियंस देखेगी। ठीक है, हम्म इंडियन ऑडियंस आप सबका मिला लो, ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन की ऑडियंस बनती है। हम्म। और अगर इंडिया कोई मेजर आईसीसी इवेंट, अगर 50 ओवर इवेंट है ये, ठीक है, इट इज नॉट अ हम्म, 20 ओवर इवेंट कि हाँ आप जैसे तैसे चला लोगे या स्पॉन्सरशिप मनी फिर भी आ जाएगा। 50 ओवर हम्म, ओवर अ पीरियड ऑफ गुड 3 or 4 years नाउ हैज बीन कंसिडर्ड एज अ स्लो गेम। आप ये या भी तो इसको बेचना इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारे हम्म स्पॉन्सरशिप सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि इंडिया खेल रही है। और इंडिया का सेमीफाइनल तक क्यों क्यों लोग बोलते हैं कि मतलब इंडिया का सेमीफाइनल तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्या कहते हैं, फाइनल तक हम्म। पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि भाई अगर इंडिया खेल रही है तो लोग देख रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट है। 2007 वर्ल्ड कप में क्या हुआ? 50 ओवर, सबसे लंबा वर्ल्ड कप था वो। आफ्टर मतलब द ग्रुप स्टेजेस, जब इंडिया बाहर हुई उसके बाद जब 8 टीमें आई और दोनों सब लोगों ने एक दूसरे के साथ राउंड रॉबिन किया, वो इतना लंबा वर्ल्ड कप हो गया। पर लोगों के पास व्यूअरशिप ही नहीं था, आईसीसी के पास हम्म। व्यूअरशिप था ही नहीं। पर उन तो लोगों ने वही मैं बोल रहा हूँ, इसलिए था वेस्ट इंडीज। स्पॉन्सर हट जाएंगे, स्पॉन्सर नहीं आएंगे। बट लेकिन इसमें रूल क्या होना चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ठीक है, चलो पैसा नहीं आया तो मतलब ठीक है, एक काम करो हाइब्रिड मॉडल में कराओ मैच, पाकिस्तान को बनाओ भाई, तुम ज्यादा पैसा खर्च मत करो अपने स्टेडियम वगैरह में। दुबई ले क्योंकि जाओ, दुबई दुबई ले ले जाओ। जाओ, दुबई है फिर नेक्स्ट ऑप्शन। बिकॉज यार वो पाकिस्तान ने कुछ 12.80 बिलियन रुपीज ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है 3 स्टेडियम के लिए, अब अपग्रेड करने के लिए, जो उनका कराची है, रावलपिंडी और लाहौर का है। और वो लोग अभी देख, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या होगा पता है, उनको 2 स्टेडियम बुक करने पड़ेंगे, एक लाहौर भी बुक करना पड़ेगा, एक अगर इंडिया पहुंचता है तो उसके लिए अपना दुबई का स्टेडियम भी बुक करना पड़ेगा। तो वो बोलेगा भाई पैसा कौन देगा, ये तो होस्ट नहीं, नेशन है इंडिया यार। इंडिया जाएगा नहीं, देख इंडिया पाकिस्तान नहीं एक जाएगा। होस्ट नेशन होता है, नहीं जाएगा, हाँ मेरे को मालूम है। होस्ट नेशन क्या करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है सब कुछ कि यहाँ पे ऐसा मैच होना चाहिए, इतने लोग आने चाहिए, ये सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैच कराना तो आईसीसी का काम है, मैं वही समझा रहा हूँ, कराना तो आईसी, होस्ट तो आईसीसी को करना है, सॉरी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, सिर्फ फैसिलिटीज ये सब देख लेगा। तो ये क्वेश्चन है, इस पे जरूर वो लोग डिस्कशन करेंगे ये कॉन्फ्रेंस में। दुबई रेंट भी तो चार्ज करेगा ना यार। हाँ दुबई के स्टेडियम्स जो है फ्री में थोड़ी आ रहे हैं। दुबई वही मैं बोल रहा हूँ रेंट ना, चार्ज करेगा पूरा का पूरा यार अपना। जैसी बात है चार्ज वो करेगा वो। वो वो ज्यादा क्या कहते हैं आपको खर्चा देगा देन, बिकॉज यू विल हैव टू अगेन सी फॉर द लॉजिस्टिक्स ऑल्सो, सी फॉर द होटल करेक्ट। accommodations ऑल्सो, सी फॉर द ट्रैवल ऑल्सो, एंड फॉर ऑल दिस दुबई विल चार्ज यू। यस। दुबई विल चार्ज यू। तो मेरे को ये जानना है कि पाकिस्तान ने कौन सा मेजर आईसीसी ट्रॉफी या कौन सा बायलैटरल भी होस्ट किया है कि सीधा वो लोग अब सीधा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करेंगे, और उनके पास स्टेडियम्स लाहौर है, कराची है, रावलपिंडी, रावलपिंडी है, रावलपिंडी खत्म, थैंक यू। यही स्टेडियम्स हैं बस। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट, see, I'm not saying that it's a bad cricketing nation or it is bad organization.
but are they capable right now with the kind of turmoil that is there in the Pakistani? Of course, it's next year. I'm making my assumptions very fast, but can they handle it? That's what I'm asking. समझ रहे हो? Like we know what's happened back in the history. Are all teams comfortable? And if they are comfortable, the amount of security that they will need to provide, the amount of logistical arrangements that they need to do, can they? I'm saying, अगर आपका एक्स क्रिकेटर आके बोल रहा है गद्दाफी स्टेडियम की छत टूट रही है, देख लो यार. I'm not saying anything else. I'm just saying that don't do it alone. Do it with other two nations also, like Bangladesh and India, and we sort of help you out a little. Yeah. Yeah. नहीं, उनका पाकिस्तान ने बोल दिया, मोहसिन नकवी ने बोल दिया है कि मेरा स्टांस बहुत क्लियर है, होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही फ्रॉम फेब से आई थिंक 19 फेब टू 9th of March हो रहा है. कंप्लीट हो जाएगा ना चैंपियंस ट्रॉफी. यार ये वही पता है वही बोलते बहुत ज्यादा है, ये लोग बोलते बहुत ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा है, करते कम है. रमीज राजा ने भी बहुत सारी चीजें बोली थी कि मतलब हम करेंगे, ये करेंगे, मतलब इंडिया को डेफिनेटली हम नहीं जाएंगे, वी विल बॉयकॉट द वर्ल्ड कप एटसेट्रा एटसेट्रा. हुआ क्या एट द एंड ऑफ द डे? ठीक है, पैसा बोलता है भाई, मतलब इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर टीम टू गो आउट and play that World Cup. You can't Yeah. boycott because there are a lot of people who want to watch. There's quite a lot of viewership money that will be at stake, sponsorship money that will be at stake, TV rights that will be at stake. So आप सिर्फ ऐसे boycott नहीं कर सकते कोई भी चीज. यार वो अभी भी बोल रहे हैं कि इफ इंडिया विल नॉट ट्रैवल फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, वी विल आल्सो नॉट ट्रैवल टू इंडिया इन 2026 T20 वर्ल्ड कप. यही चीज उन्होंने इसके लिए भी बोली थी, 2023 वर्ल्ड कप के लिए भी बोली थी, पर हुआ सब आ जाता आए सब आ ना. जाता. उन्होंने बोला अहमदाबाद में मत रखो हमारा मैच, हम नहीं आएंगे, वो आए ना. उन्होंने ये भी बोला कि चेन्नई में मत रखो हमारा अफगानिस्तान के साथ मैच, हुआ भाई, वो आए ना, वो आएंगे और हम नहीं जाएंगे. फिर ये बोलते क्यों है इतना? सोचो एक मैच इंडिया में हो रहा है दिल्ली में, एक मैच सारे इंडिया के मैच दिल्ली में हो रहे हैं. Alright guys, so आज की काफी बातें हो गई, मतलब न्यूजीलैंड के बारे में बात कर ली हमने, वेस्ट इंडीज के बारे में बात कर ली, हमने आईसीसी और पाकिस्तान थोड़ा बहुत पाकिस्तान के ऊपर भी बात कर ली, बट डेफिनेटली we'll touch upon the Pakistan topic a little more in detail in the next episode as well, and tell you about a little bit about their domestic structure and how they go about their own business, and what is it for them in this entire Champions Trophy, and of course a few selection calls that have been made by Australia, and of course a few statements made by a few ex-players and the selection committee as well, and of course whether we'll get to see David Warner or not is entirely up to Cricket Australia, but they've denied all that, and all that we'll discuss in the next episode as well. And do let us know as to what you'd like us to discuss in the next few episodes that we have. We've kind of sort of started this entire series now for you guys, and on Saturdays we'll discuss a little bit about the domestic structure of India and a few domestic players as well for you guys to watch out for, also in the IPL auction and the next year IPL as well, and maybe if God is willing, then also in the Indian colors, because GG is going to be taking over as the Indian coach, and we don't really know as to who all are going to be there in his support staff. But all that in the next episode. Till then, of course, take care and goodbye.